Very good morning everyone and welcome back. Today I'm going to start chapter 5 of Hornbill book, The Alien Planet, The Green Movement Role, written by Nani Palkiwala. Alien. It is called It. So let's start the chapter. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express. Indian Express is the newspaper on 24th November 1994. Remember this date, 24th November 1994. The issues that he writes regarding the decline health of the earth continue to have relevance. What happens and what was the main issue? Issue is the declining health of the earth. अब होता क्या है कि फॉलो जो भी आर्टिकल्स है उसको नानी पालकीवाला ने लिखा है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस जो उस समय का क्या था न्यूज़पेपर था, उसमें 24 नवंबर 1994 को इस पब्लिश हुआ। और इनमें जो मेन इश्यूज था वो ये था कि अर्थ का जो प्रॉब्लम्स था वो लगातार बढ़ते जा रहा था, इस कारण से इस बारे में आर्टिकल्स लिखा गया है। नाउ one cannot recall any moment in world history which has gripped the imaginations of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. One cannot recall any moment in the world history, in the whole world history, have not one any cannot recall. कोई भी हिस्ट्री में क्या थी, कुछ भी चीज़ें जो दोबारा रिकॉल्स नहीं होता, विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। पूरी ह्यूमन रेस में क्या था, उसी चीज़ों को इमेजिनेशन बस किया जा रहा था। सो कम्प्लीटली एंड रिपीटली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago. Here I have ago, it means 1994 and 25 years ago. तब क्या होता है, जो ग्रीन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया वो 1994 के 25 years पहले स्टार्ट किया गया था। इन 1972 this year the world first nationwide green party was founded in New Zealand. Remember that 1972 this year first nationwide green party was founded in New Zealand. पहला जो ग्रीन पार्टी था वो न्यूजीलैंड में पाया गया, वो था 1972 को। Since then the movement was not looked back. After that they have continued but they was not looking back. होता है क्या, उसके बाद वो लगातार बढ़ता ही गया, वापस पीछे नहीं देखा गया। पीछे ना देखने का मतलब क्या था, they have not a decrease, उसमें कोई भी कमी नहीं होती गई। We have shifted one hopes invocably from the mechanistic view of the holistic and the ecologistic view. In this have two types of views objecting in this green movement, and first was holistic and second was ecologic. Holistic view और ecological view के थ्रू इसको देखा गया पूरे वर्ल्ड में। It is the shift in human perception as the revolutionary as that introduced by Copernicus. As the Copernicus, he was the person when he was the introduced in this. जो कॉर्पनिकस था एक साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया, किसका, ग्रीन मूवमेंट्स का। He taught the mankind in the 16th century. Remember that when Copernicus जो थे वो ग्रीन मूवमेंट्स के बारे में बताया, वो था 16th century में। That the earth and the other planets revolved around the sun, and he was telling about that because earth and all other planets they will be started thus revolve and around the sun. वही बताते हैं कि जो अर्थ है क्या करते हैं, अर्थ हैं जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड करते रहते हैं। For the first time in human history there is the growing worldwide unconsciousness that the earth itself is a living organism. ये पहली बार था जब वर्ल्ड वाइड में, ये फर्स्ट टाइम था जब उसको बताया गया कि क्या होता है कि अर्थ
खुद से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एन इनॉर्मस बीइंग विच वी आर पार्ट्स एंड वी आर पार्ट्स ऑफ दैट लिविंग, उन लिविंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका हम एक बहुत बड़ा इनॉर्मल, इट इज़ अ ह्यूज, बहुत बड़ा पार्ट्स हैं. Especially this chapter is just like as the science, because you will remember dates, what happened on that times, what happened as on the year, and especially who told about this. इन चीज़ों को आपको याद करनी पड़ेंगे. When there is a need to be respected and preserved, उसमें उसको क्या किया गया, रिस्पेक्ट दिया गया और को सुरक्षित रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया. द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. जो अर्थ वाइटल है उसमें साइंस के तरीके से क्या हो गया, पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जो हेल्थ के बारे में प्रोवाइड्स किया गया. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टेवर्ड्स टू द प्लैनेट एंड रिस्पांसिबल जस्टिस of the legacy to the future generations. When we have begun to start about the thing about the future generations, because if we will be do everything in the same generations, they will be not remains for next generations. वो यही बताया गया है कि अगर हम कुछ भी चीज़ों को नहीं बचाते हमारे आने वाले generations के लिए, तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं. क्योंकि होता क्या है यार, हम जब सब चीज़ को अभी वेस्ट कर देंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा, नथिंग, कुछ नहीं. तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि हमको ये चीज़ों का एथिकल ऑब्लिगेशन, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हमको इसी जनरेशन से बचा के रखना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. जब 1987 को होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस डेवलपमेंट का जो पॉपुलराइज्ड होता है वो हुआ 1987 को, और इसका कौन था, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनीज की डेवलपमेंट के थ्रू इसका पब्लिकेशन हुआ. In this report is defined the idea as development that meets the needs of the present. इसके थ्रू ये बताया गया, क्या आइडिया था, डिफाइंस किया गया कि डेवलपमेंट का मीट्स एंड नीड्स द प्रेजेंट, कि उसकी कितनी आवश्यकता है, इस तरीके से प्रेजेंट की कितनी आवश्यकता है उसके बारे में बताया गया. विदाउट compromising the ability of the future generations to meet their needs. But in these times they are not thinking about the next generations, they are not thinking about the future, they are usually used as his ability. लोग क्या कर रहे हैं, वो अगले जनरेशन्स के बारे में न सोचते हुए वो खुद उन चीज़ों का यूज़ करते जा रहे हैं. Without stripping the natural world of resources future generations would need, but they are not thinking about another generations. They have a need of these types of things. हमें तो होगा ही ना, जो हमारा इन्वायरमेंट जब क्लीन रहेगा तो हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी वही क्लीन हो, बट हम उन सब चीज़ों को वेस्ट करते जाएंगे तो कॉमन सी बात है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, उनको तो और बहुत खराब इन्वायरमेंट मिलेगा. वैसे ही अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब 1987 में जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया तो लोग क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर्स के बारे में, नीड्स क्या है उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते. उसके बारे में बताया गया है इन द जू. रिमेंबर दैट प्लेस जू एट लुसाका. लुसाका इज द प्लेस ऑफ जाम्बिया. याद रखना, एक जू था कहाँ, लुसाका में, जो कि जाम्बिया में है. देयर इज द केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. Where have one cage as a cage for animals, and there have a rides. What was the rides? The world's most dangerous animal. एक जू था कहाँ पे, लुसाका में, जाम्बिया में. वहाँ पे एक केज था जिस केज में लिखा हुआ था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केज
देयर इज नो एनिमल, लेकिन उसके अंदर में कोई एनिमल तो था ही नहीं. सो हु इज दैट मोस्ट डेंजरस एनिमल? मोस्ट डेंजरस एनिमल इज वी आर, बिकॉज but a mirror where you see yourself. There have one mirror, and if you will be go that side, you will be see your face. So who's the most dangerous animal in this world? Human beings, because they will be destroyed and they will be build self. उसको खुद बनाते हैं और खुद बर्बाद करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं. इसीलिए ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे क्या बताया गया है? The most dangerous animal in this world. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has dawned upon the most dangerous animal in the world. Now, after saying this, especially thanks to the efforts of the number of agencies, बहुत सारे एजेंसीज थे जिसको इसके लिए थैंक्स बोला गया. वाई? बिकॉज इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री दे विल बी टेलिंग दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स अबाउट पीपल्स. लोगों के बारे में वो उसको अवेयरनेस करा दी गए, जागरूक करा दी गए कि यही चीज़ें हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट डेंजरस बना देता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि लोग ही उसको क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. He has realized the wisdom of shifting from a system based on dominations to one based on partnership. First of all, he has realized, उनको रियलाइज होता है, किसको रियलाइज होता है? कॉपरनिकस को रियलाइज होता है कि लोग क्या करने लगते हैं, अपनी खुद की जो विजडम है, खुद की बुद्धि के साथ साथ क्या करने लगते हैं, जो डोमिनेशंस होता है एक बेसिस से पार्टनरशिप के थ्रू उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेक्स विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ. 1.4, 1 means 10 lakhs and 1.4 here, 1 million into 10 lakhs. अब 1 मिलियन कितना होता है? 10 lakhs होता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि कैटलॉग्ड किया गया है कि 1.4 मिलियंस लिविंग स्पेसीज विद द मार्क्स मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ. यहाँ पे 1.4 मिलियंस क्या होते हैं? लिविंग स्पीसीज होते हैं जो इस अर्थ में रहते हैं. Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. इसमें से बहुत सारे एस्टिमेट जब बनाए जाते हैं तो ऐसे इस जो रिगार्ड के थ्रू होता है कि क्या होते हैं, अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज भी होते हैं जो इस बायोलॉजिस्टिक रिकॉग्निशन दैट इज देयर 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल दैट लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस. इस डार्कनेस में भी 100 एंड मोर देन स्पीसीज होते हैं जो इस लिविंग क्या होते हैं, इस अर्थ में लिविंग करते हैं, रहते हैं. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर आलिया. अब इंटर आलिया क्या है? इंटर आलिया इज द लिविंग. अब यहाँ पे आलिया भट्ट वाली बात नहीं है ना, इंटर आलिया बताया जा रहा है कि अर्ली इंटरनेशनल डेली होता क्या है, जो कमीशंस है वो इंटर आलिया के बारे में बताता है. विद द क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशंस व्हिच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज द वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर L.K. Jha. When he used to take questions about ecology and environment. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में एक क्वेश्चंस किया गया. जो क्वेश्चंस होता है वो होता है ब्रांड कमीशंस का जो मेंबर्स था उसका नेम्स थे मिस्टर L.K. Jha. मिस्टर L.K. Jha द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रियलाइज्ड द क्वेश्चंस. और उनका पहला क्वेश्चन क्या था? आर वी टू लिव और सक्सेसर्स a snowy planet of advancing desert, improvised landscapes and ailing environment. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्या हम अपने उत्तराधिकार, अपने सक्सेसर जो आने वाले पीढ़ी के साथ इस एडवांसिंग डेजर्ट में, ऐसे रेगिस्तान में इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप, इस तरीके से लैंडस्केप में, और जो एलिंग इन्वायरमेंट है, जो इल इन्वायरमेंट है, उसमें हम क्या रह सकते हैं? मिस्टर
Lester R. Brown in his thoughtful book. What is the name of the book? The Global Economic Prospect. जो क्या थे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन्स ने अपने बुक्स में अपना थॉट्स दिया है, जो था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में. पॉइंट्स आउट ऑफ द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4. उसमें कितने पार्ट्स बताए हैं उसके? 4. बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4. व्हाट इज द फर्स्ट? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड croplands. There have 4 parts and they have the foundations of the global economic system. और इन्हीं चारों को क्या बनाया है? ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स का मेन बेस बताया गया है. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually in the raw materials for industry aspect, minerals and petroleum derived synthetic. Especially they have a supply of our food. यही चारों होते हैं जो हमें फूड्स प्रोवाइड करते हैं. दिस 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री. और यही चारों क्या होते हैं जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं किसको? इंडस्ट्री को. एक्सेप्ट मिनरल्स को छोड़ के, क्योंकि मिनरल्स तो हमारे अर्थ के अंदर से मिलता है ना. एंड पेट्रोलियम डेराइव्ड सिंथेटिक. और जो पेट्रोलियम्स और जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के अंदर से मिलता है. तो ये दोनों को छोड़कर जो बाकी चीज़ें होती है, दैट इज द नेसेसरी फॉर human beings and that is necessary for which industry also.